morning, good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on intellectual property right, in which we try to understand what is meaning by the intellectual property right. There are three concepts, three words which are included in this concept. First one intellectual, and second one property, and third one right. Intellectual, it is a special gift which is given by the God to human being. If we are compare others animal, other species on the back of earth, and that is why human being get to think over different kinds of things. He can imagine, he can think, he can solve the problem, he can make the decisions with the help of intellectual power, and that is why it is called the property of human being, right? So it is need to be protected, right? If we don't protect our property, then there may be chances that someone steal your property, someone take over on your property. That is why it is need to protect it, and due to this need, the right is most important, the act is most important, which is made by the society, which is made by the country. So there are so many points we discussed in the last lecture regarding these intellectual property rights, and so many example also we have taken for understanding this concept. And after that, we saw that there are two different types of intellectual property. First one is a copyright, and second one is industrial right. So under the copyright, which kind of the things we can register, we have also discussed in the last lectures. And under the industrial right, which kind of the things we are going to register, we have also discussed on this. So industrial property, it is a kind of property in which manufacturing, processing, warehousing, all these related things are come under this property. And trademark we have also discussed in the last lectures, and patent, there is a patent office in our India, and there is website also of this office, patent office. And if you want to register any kinds of research, new idea, new generation, you can register under the patent by visiting patent office. So we have also seen live example of this. Patent office. So under the intellectual property right, this is the major, this is the main website. Under this you can register any kinds of your creation, like research, like design, okay, like your logo, like this, okay. So under this tab you can register your patent, whatever research you have done
in your field, you can register under these. And if you are working in the field of factory, in the field of manufacturing, in the field of company, in the field of industrial area, industrial business, then you can design any kinds of things. So you can also register under this website, under this act. Trademark also you can register here. So in this way, by visiting this website, you can register patent, design, trademark also. So there is no need to go anywhere, or there is no need to contact third party or third agency. They will deceive some time by demanding a lot of money. Basically, actual fee is different for registrations, and they are demand a lot of fees or extra fee than the registration fees. तो जब भी आप किसी क्रिएशन का पेटेंट हो, रिसर्च हो, ट्रेडमार्क हो या डिज़ाइन हो, आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो इन सभी प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर द एजुकेटर, you are working in the field of education, that's why you should know regarding this. तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड दैट्स व्हाई एज अ प्रोफेशनल, एज बीइंग प्रोफेशनल, we should know how to register our creation, whether it is artistic work, whether it is literary work. Both kind of work you can register under the Copyright Act by visiting the copyright office manually as well as by online. And after that, you can register your patent, design, trademark under the Industrial Property, Industrial Act, which is specially made for the protection of intellectual property, right? If we know the information regarding this act and this registration, so we can do ourselves this kind of the registration, and we also tell other person to register your creation, right? तो जब हमें खुद को पता होगा कि किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो भी हमारे क्रिएशन होते हैं या क्रिएटिविटी होती है, हम पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. और इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो एक्चुअली जो बेसिकली फ़ी होती है वो बहुत कम होती है. नॉर्मल फीस होती है, जैसे कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपका लिटरेरी वर्क या आर्टिस्टिक वर्क, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक फीस लग सकती है. लेकिन जब आप थर्ड पार्टी के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन करते हो तो वे 1000, 2000, 3000, 5000 तक अमाउंट आपसे ले सकते हैं. आपका इग्नोरेंस का वह गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं. तो इस तरह से इससे भी बेसिक बातें जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, वह हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम खुद तो कर सकते और औरों को भी गाइडेंस कर सकते इसके बारे में. तो आपको ये लाइव एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है. यहाँ पर विजिटिंग करके आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है पेटेंट के अंतर्गत. ये टैब यहाँ पर दिखाई है, यहाँ पर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, कॉल लिस्ट, ई सिटीजन, सर्विस मैटर्स, हैप्पी अवेयरनेस, ओके.
सभी यहाँ पर भी दिया है। पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी, आस्क क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सभी प्रकार के टैब और सब टैब यहाँ पर दिए गए हैं। बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट यू कैन टेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। ओके, so patent is an exclusive right granted for an invention which is product or process that provide in general or new way of doing something or offer a new technical solution to problem. Okay, so this right is confirmed by patent office. So in this way, by patent office some rights are given to you, those who are creating something new in their field, means they are doing the research, they are searching the new ideas, they formulate the new theories. Okay, they discover something new in their field. That's why the patent office has given some right. You can register your ideas, your notion, your theories, okay, whatever it. So it is a right for inventor or exploit his invention subject to the provision of Patent Act 1970 for limited period of time. So those person who invent something, that is called the inventor, and if they want they can register under the patent their invention, and the provision is given under the act, patent act in 1970. तो कोई भी इन्वेंटर होगा अपना इन्वेंशन जो है वह पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना रिसर्च रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन इसके लिए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. तो पेटेंट लॉ हमें एक प्रकार की श्योरिटी देता है कि जो भी हम करने वाले हैं, जो भी इन्वेंशन हमारे द्वारा होने वाला है, उसका जो पेटेंट है वह हमें ही मिलने वाला है और इसका हमें ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरा इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकता। ये श्योरिटी हमें इस एक्ट के द्वारा मिलती है और फिर जाके हम इंस्पायर होते हैं कि हम कुछ अच्छा करें। कोई भी बंदा और कोई भी इंसान तभी इंस्पायर होता है जब उसके द्वारा कोई भी एक्टिविटी या क्रिएटिविटी को प्रोटेक्शन मिले, तो वो बिना कोई दिक्कत, बिना कोई हिचकिचाते वह अपना क्रिएशन करते रहता है। यदि क्रिएशन करने के बाद भी उसको फ़ायदा नहीं मिलता है और कोई उसे चुरा लेता है, कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है और फिर कोई कुछ नहीं करता, तो वो इनसिक्योर फील करता है। तो कभी कभी वो ऐसा सोच सकता है कि क्रिएशन करके भी क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा हमें होने वाला है नहीं, तो क्रिएशन करना बंद कर देता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत उसको एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिलता है, श्योरिटी मिलती है। द प्राइस ऑफ द ग्रांट ऑफ मोनोपोली इज द डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन एट द पेटेंट ऑफिस विच आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन लिमिटेड पीरियड यहाँ पर दिया है। यू कैन रजिस्टर your invention, your research, your discovery under the Patent Act only for the 20 years. So up to 20 years you can take advantage, any kinds of advantage, commercial advantage, non-commercial advantage for name and fame you can take, and after that this period will be expire automatically. So this kind of the provision is given
under the Patent Act. So the monopoly passes into public domain. So 20 साल तक आप उस पर मक्तेदारी यानी मोनोपोली कर सकते हो और उसका फ़ायदा आपको हो सकता है, लेकिन 20 साल के बाद आपका जो इंडिविजुअल इन्वेंशन होता है वह पब्लिक हो जाता है, यानी कि पब्लिक का उस पर अधिकार हो जाता है। लेकिन जो इन्वेंशन होता है, जो पेटेंट होता है, आपके ही नाम पर होता है, आपका ही नाम उस पर चलता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वह पब्लिक को होने लगता है। So the fundamental principle of patent law is a patent is granted only for invention which must have novelty and utility. So what is the basic goal of patent law? Basic objective of patent law, basic principle of patent law we can mention here. Patent is granted only for the invention which must have novelty and utility. So why the patent is given and for whom it is given? Those people who are invent something new and something utility, such a kind of the people given, okay, this kind of patent. So it is essential for the validity of a patent that is must be the inventor own discovery, opposed to mere verification of what was already known before date of the part patent. Patentable invention, apart from being a new manufacture, and must also be useful. So there is a certain kind of stages, certain kind of the procedures to register the patents. So that's why the quality is maintained in the research. Otherwise what will happen, someone will wake up and will go in the office of patent and register his patent on his name. तो कल कोई भी ऐसा कर सकता है कि उठकर जहाँ पेटेंट ऑफिस में जाकर अपना रजिस्टर करवा सकता है पेटेंट। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए सर्टन स्टेजेस है, सर्टन प्रोसीजर है। उसमें जब आप बैठते हो, उस एलिजिबल होते हैं उसमें, तभी पेटेंट आपके नाम पर हो सकता है। अदरवाइज you can't register your research under the Patent Act if you don't follow certain steps, certain procedures which is given by the patent law. Okay. The Protection of Invention Act was adopted in 1883. This act were consolidated in 1888 as the Invention and Design Act. The Protection of Invention Act 1883 में किया गया. This act were consolidated in 1888 में ये न्यू एक्ट तैयार किया गया. The patent bill was introduced in the Lok Sabha on 21st September 1965. So in this way 1965 में 20 सितंबर को लोकसभा में ये बिल पास हुआ. तो उससे पहले किस तरह की प्रोविज़न उसमें थी और कौन सा लॉ था, इसको आपको देखना होगा. प्रोटेक्शन इन्वेंशन एक्ट तैयार किया गया 1883 में, ओके. और कंसोलिडेटेड इन्वेंशन एंड डिजाइन एक्ट 1888 में, ओके. ये दो एक्ट. और फिर लोकसभा में एक बिल पास हुआ. द पेटेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 1965, ओके. तो ये तीन जो इवेंट है, तीन जो घटनाएं हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसको आप अपने बेस पे रजिस्टर कर सकते हो.
So in 1967 again an amended bill was introduced और फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट यानी कि डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन हुआ। फिर 1967 में एक नया बिल लोकसभा में लाया गया, which was referred as a joint parliamentary committee, जो जेपीसी के सामने रखा गया। रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी द पेटेंट एक्ट 1970 was passed और फिर अलग अलग तरह की रिकमेंडेशन जेपीसी के द्वारा दी गई और फिर पेटेंट एक्ट 1970 में पारित हुआ। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 20th अप्रैल 1972। लेकिन यह जो एक्ट है कब लागू हुआ? अप्रैल 1972 में। तो इस तरह से आप इंडियन पेटेंट लॉ और एक्ट किस तरह से पारित हुआ, किस तरह से पास हुआ, इसकी एक हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है आपको। और इसके संबंधी में कोई भी सवाल पेपर में आया, एग्ज़ाम में आया, तो आप अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकते हो। सो हाउ द डेवलपमेंट वाज डन इन द हिस्ट्री ऑफ पेटेंट एक्ट। तो ये सभी जो इवेंट है, सभी जो इंसिडेंट है, आपको बताना है क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ करके, और तभी जाके आपको इस पेटेंट लॉ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड पेटेंट आर। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बताई है कि जो पेटेंट एक्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इज नॉट अलाउड। In order to be patentable, an improvement on something known before or combination of different matters already known should be something more than a mere workshop improvement and must independently satisfy the taste of invention or an inventive step. It must produce new result, a new article, or better, cheaper article than before. The new subject matter must involve invention or what is old. तो पेटेंट यानी कि क्या? जब भी आप कोई नई चीज़, नई थ्योरी, नई आइडियाज़ फॉर्मुलेट करते हो, नया इन्वेंशन करते हो, तभी आपको आपके नाम पे, उस रिसर्च के नाम से पेटेंट मिल सकता है। और यदि कोई ओल्ड इन्वेंशन है, ओल्ड आइडियाज़ है, ओल्ड थ्योरी है, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके न्यू थ्योरी फॉर्मुलेट करता है, न्यू नॉलेज जनरेट करता है, न्यू इन्वेंशन करता है, तो उसमें भी आपको पेटेंट मिल सकता है। तो पेटेंट का अर्थ ही है जब आप किसी नॉवेल्टी और यूटिलिटी थिंग क्रिएट करते हो, तभी आपको उसके नाम पर पेटेंट मिलता है। इट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। दिस स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव, rewarding patent for invention to make sure that patent product, particularly pharmaceutical ones, are available to public in developing underdeveloped countries and at affordable price. तो उसमें क्या होता है फिर? इसका जो दो ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, कौन सा? रिवार्डिंग पेटेंटीज और इन्वेंशन। जिसने ये पेटेंट फाइंड आउट किया है, रिसर्च फाइंड आउट किया है, उसको इसका फ़ायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। और जो अनडेवलप कंट्री है और अंडर डेवलप कंट्री है, ओके, उसको भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। नाउ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, व्हाट इट टेल्स। So as per WIPO, in legal sense,
As per WIPO, in legal sense, an industrial design constitute the ornamental and aesthetic aspect an article. The industrial design may consist of three-dimensional features such as the shape of an article or two-dimensional features such as patterns, lines or colors. Okay. तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आप ऑर्नामेंटल एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल ये सब रजिस्टर कर सकते हो. एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कंसिस्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल फीचर्स. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में थ्री इम्पोर्टेंट फीचर्स इसमें आते हैं. वो कौन से हैं? इसमें शेप ऑफ आर्टिकल, टू डायमेंशनल फीचर्स सच एज पैटर्न, लाइंस और कलर, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है. और इसके जरिए आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट के अंतर्गत अपना इंडस्ट्रियल जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, वह रजिस्टर कर सकते हो. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रेफर टू द क्रिएटिव एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन द ऑर्नामेंटल और फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट. And design right refer to a novel or original design that is accorded to the proprietor of validity register design. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत आप ऑर्नामेंटल, फॉर्मल अपीयरेंस, प्रोडक्ट वगैरह सभी प्रकार के जो इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स है अपने प्रोडक्ट के और डिज़ाइन के, सभी आप रजिस्टर कर सकते हो. और एक्सटर्नल मतलब उसका शेप है, ऑर्नामेंटल अपीयरेंस है, ये सभी चीज़ें उसमें आते हैं. और जो इंटरनल मतलब जो फंक्शन है वो सभी इसमें आता है. और दोनों प्रकार से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. So industrial designs are elements of intellectual property. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक छोटा एलिमेंट्स है. इन प्रिंसिपल द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑफ एंड डिज़ाइन पेटेंट हैज़ द राइट to prevent third parties from making, selling or importing article bearing and embodying design which is a copy or substantially a copy of the protected design when such act are undertaken for commercial purpose. Such right are perpetual. So after registration of your industrial design, so nobody can take misadvantage of your design because you will get the legal surety there after registrations, and nobody misuse of your product there. And that is why this is the main or basic purpose of intellectual property rights. So what kind of the things you can save from the other person from making or selling or importing article bearing or importing design which is a copy or substantially copy of protected design. So if you are registered under this act, then your design become safe and nobody can take a commercial advantage from your research, from your design. So under the TRIPS agreement, minimum standard of protection industrial design have been provided. As a developing country, India has already amended its national legislation to provide for these minimal standard. The existing legislation of industrial design in India is continued in New Design Act 2000. So in this way, under the TRIPS Act, this act is work at international level, but in India, which kind of the law is made there, New Design Act in 2000. This kind of the act is prepared under the TRIPS because this law or act is follow all kinds of the rules and regulation which is made or which are given the provisions in the TRIPS agreement. तो इस तरह से ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो भी
इंटरनेशनल लेवल पे प्रोविजंस इसमें दी गई है, वो सभी प्रकार की प्रोविजंस इंडियन जो डिज़ाइन एक्ट है उसके द्वारा फॉलो की जाती है। और दिस लॉ इज़ वेरी अडॉप्टेबल at international agreement, and that's why this law is very famous in our India, in suitable in our India New Design Act 2000. So you remember that the particular year in which year this kind of act is enacted. Okay, so this act serves its purpose well in the rapid changes in technology and intellectual international development. Actually, this law is made in 2000, and from this moment till this age, it is very suitable for our nature, our country, and changes, a lot of changes occurred in the technology field of technology, and that's why there is no need to modify it again. And when the time will come, the modification will be done there. तो 2000 से लेकर 2025 तक ये एक्ट जो है वह सूटेबल एक्ट साबित हुआ है, और अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। इसलिए हमें ये प्रतीत होता है, हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सर्वसमावेशक एक्ट तैयार किया गया है जो कि सभी प्रकार की प्रोविज़न और प्रावधान को इंक्लूड करता है। So India has also achieved a mature status in the field of industrial design and in views of globalization of the economy. So this law is not only help register all kinds of the designs, those who want to register, but it also help to strong the our economy, to help, or it is adaptable also to the global economy. तो ये जो लॉज है उसमें ओनली डिज़ाइन रजिस्टर करने की प्रोविज़न ही नहीं दी गई, और इट इज़ नॉट ओनली द ऑल इंक्लूसिव, ये सर्वसमावेशक ही नहीं, तो बल्कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको अडॉप्ट के रूप में ये जाना जाता है, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड द ऑल इंक्लूसिव एक्ट। So India has also achieved a mature status in the field of industrial design, and in views of globalization economy, the present legislation is aligned with the changed technical and commercial scenario and made to conform to international trends in design administration. Basically, laws are made or act are enacted three levels: state level, country level, as well as international level. तो इन सभी प्रकार के लॉज में जो है यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। इफ़ वी आर प्रिपेयर द लॉज अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, अकॉर्डिंग टू आवर फीचर्स at national level, but if we don't follow, if we don't adopt the international laws, then what will happen? There is a lot of diversity will become in our laws, and this law is not suitable to इंटरनेशनल लॉ। तो जब हम नेशनल लेवल पे लॉज बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, तो उसमें हमारे फीचर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन हम तैयार करते हैं, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम लॉज बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, वह इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप हो और उसके अडॉप्टेबल हो, तभी हम उसमें यूनिफॉर्मिलिटी ला सकते हैं। अदरवाइज हमारे देश का जो मैटर है इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो भी हम लॉज बनाते हैं वह इंटरनेशनल लॉ से एडॉप्ट होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, तभी इसमें यूनिफॉर्मिलिटी आ सकती है। तो इसका मतलब जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो हम हमारे हिसाब से लॉ नहीं बनाते, हमें जो इंटरनेशनल लॉ है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और यदि हमने ये ख्याल नहीं रखा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब द प्लेस विच इज़ यूज फॉर द कमर्शियल
commercial purpose, and that is why it can be registered as a geographical indication. Okay, a geographical indication that is called GI is a sign used on product that have a specific geographical origin or possess qualities or reputation that are due to the origin. Okay, so in our India or any other country, there are so many places. The places are particular places from where we can generate different kinds of the products. Okay, that is why the speciality of place attached to the product, and the combination of both is made like this. We can't separate from each other. तो उसकी जो अलाइनमेंट होती है इस तरह से हो जाती है प्लेस और प्रोडक्ट की, तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, या हमने सेपरेट करने का प्रयास किया तो अंडर दिस एक्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकते हैं, आसाम की चाय। ओके, तो आसाम के नाम से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने यह नेम यूज किया है अपने प्रोडक्ट में, और फिर ये नाम कोई और ले नहीं सकता, जोग्राफिकल इंडिकेशन करके वह रजिस्टर हुआ है। Sign must be identify product and origin of given place. In addition, the qualities, characteristic, reputation of the product should be essential. So, place also indicate the qualities, characteristic or reputation, and that is why the name of place or geographical indication cannot be taken without any permission of the owner if he registers under the geographical indication. So due to the place of origin, since the qualities depend on the geographical place of productions, there is a clear link between the product and its original place of production. So already I have told that there is a link, there is a connection between the place and the product. So both are looking very similar. We can't separate from each others. हम एक दूसरे से उन्हें अलग नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है प्लेस, और प्लेस प्रोडक्ट प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्लेस के नाम से अपना प्रोडक्ट बनाया है, वह जोग्राफिकल इंडिकेशन करके वह रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में यदि किसी ने इस नाम को चुराने की कोशिश की या विदाउट परमिशन उसका यूज कमर्शियल यूज करने की कोशिश की, तो वे उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। So geographical indication right enable those who have a right to use indication to prevent it use by third party whose product does not conform to the applicable standard. For example, in jurisdiction in which the Darjeeling geographical indication is protected, products of Darjeeling tea can be excluded. Use the terms Darjeeling 40 not grown in their tea gardens or not produced according to the standards set out in the code of practice for the geographical indication. So Darjeeling, this place is located in the Assam and it is famous for the tea. चाय के लिए फेमस होती, चाय पत्ती के लिए, वहाँ पर बहुत सारे फार्मिंग है चाय के, तो उसके नाम से ही दार्जिलिंग टी कंपनी रजिस्टर हुई और उसने अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया, और फिर उसका लोगो बनाया और नेम ही उसका लोगो में आया। तो यहाँ पर प्लेस का नाम एज लोगो करके या जोग्राफिकल इंडिकेशन करके यूज किया गया, और जब उन्होंने ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो सभी प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज़ है, जिसे हम कायदेशीर फॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं लीगली, तो उन्होंने सब पूरी की है और उसके अंतर्गत उन्होंने ये नाम रजिस्टर किया है जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत। फिर फ्यूचर में जाकर इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, और किसी ने किया भी तो ये कंपनी क्लेम कर सकती है संबंधित व्यक्ति पर या संस्था पर और कंपनी पर। तो इस तरह से प्लेस एंड द प्रोडक्ट लुकिंग वेरी सिमिलर while we give the name of place to the product. जब हम किसी
प्लेस का नाम प्रोडक्ट को देते हैं तो दोनों हमें सिमिलर दिखाई देते हैं, हम उसका यूज बिना परमिशन नहीं कर सकते। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ओके, इसके बारे में जानते हैं। So what is meaning by the trade secret? Trade means it is a kind of the business, and secret means it is not disclosed. Okay, that is called the trade secret. Okay, those things are discussed secretly that cannot be disclosed to in front of the other person. That is why it is called the secret, right? जो चीज़ें, जो बातें हम सबके सामने नहीं कह सकते, जो इम्पोर्टेंट होती है कमर्शियली, तो उसे सीक्रेट कहा जाता है। और यदि ये सीक्रेट लोगों को पता चल जाता है तो फिर हमारा जो बिजनेस का जो पर्पज़ होता है वह हम खो देते हैं या चला जाता है, उससे हमें लॉस होता है। तो इसलिए बिजनेस में कुछ सीक्रेट इम्पोर्टेंट होती है जो सभी को नहीं बताई जाती। ओके, so broadly speaking, any confidential business information which is provided enterprises competitive edge may be considered as a trade secret. Okay, so while we are doing the business in any kind or any fields, at that time some secrets are most important regarding the product, regarding the business policy, regarding the staff, regarding the companies, right? So those people who are working in the company, they don't have right to disclose it. जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन्हें वह डिस्क्लोज करने का अधिकार नहीं होता है, और थर्ड पार्टी को भी डिस्क्लोज करने का अधिकार नहीं होता है। ओके, इम्पोर्टेंट जानकारी इसे हम कहते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इसे कहते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। ओके, और यदि उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है, बिजनेस और कमर्शियल के लिए यूज करता है, इट इज़ अ क्राइम, ये क्राइम होता है अंडर द ट्रेड सीक्रेट। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सच इंफॉर्मेशन बाय पर्सन अदर दैन द होल्डर इज रिगार्डेड एज द अनफेयर प्रैक्टिस एंड वायोलेशन ऑफ द ट्रेड सीक्रेट। यदि कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है तो यह वायोलेशन होता है इस ट्रेड सीक्रेट का, और अनफेयर प्रैक्टिस इसे कहा जाता है, गलत चीज़ इसे कहा जाता है। मॉरली तो ये गलत ही, लेकिन लीगली भी इसको गलत कहा जाता है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द लीगल सिस्टम, द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट फॉर्म्स parts of general concept of protections against unfair competition or is based on specific provisions or case law on the protections of confidential information. So the subject matter of trade secret is usually defined in broad terms and includes sales methods, distribution methods, consumer profiles and advertising strategies, list of suppliers and clients and manufacturing process। तो ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है यहाँ पर दी गई है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेड सीक्रेट इज डिफाइन ब्रॉड टर्म्स इसमें आती है, टर्म्स एंड कंडीशन, इंक्लूड सेल मेथड, जो सेल मेथड से रिलेटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से रिलेटेड होती है, कंज्यूमर प्रोफाइल से रिलेटेड होती है, और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी से, लिस्ट ऑफ सप्लाई, क्लाइंट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है। ट्रेड सीक्रेट इन सभी बातों को इम्पोर्टेंस देता है, इंडस्ट्रियल ट्रेड सीक्रेट्स। ओके, तो आपको इसके बारे में
सीक्रेट बातें जो होती है वह डिस्क्लोज नहीं करनी होती इफ़ यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर ट्रेड और ट्रेड के बारे में हमेशा बातें होती रहती है, और जो हम मीटिंग अरेंज करते हैं या किसी एजेंडा के द्वारा प्रोपोगंडा के द्वारा हमें ये सभी बातें बताई जाती है, तो हमें ये चीज़ें बाहर बतानी नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड अनफेयर प्रैक्टिस। तो इसे हम अनफेयर प्रैक्टिस कह सकते हैं। The final determination of information constitute trade secret will depend on the circumstances of each individual case. An unfair practice in respect of secret information include industrial and commercial espionage and each breach of contract and breach of confidence. तो इस तरह से we can't disclose any kinds of individual case unfair practice, okay, otherwise what will happen, we are become culprit under this act। तो इस लॉ के अंतर्गत हम एक गुनहगार हो सकते हैं, तो हमें ये अनफेयर प्रैक्टिस यहाँ पर करनी नहीं है। सो आफ्टर कंप्लीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी करने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, थेरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, so intellectual property, it is a kind of concept which is related many theories, जिससे अलग अलग प्रकार की theories related है। so we are going to discuss on different types of theories which are related to the intellectual property rights। तो इन सभी theory इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं जो intellectual property से related है। So there are four main justifications offered for intellectual property rights, which includes natural right theory, utilitarian theory, ethics and reward theory, and personality based theory और personhood theory। तो चार प्रकार की theories which are given in front of us यहाँ पर दी गई है। पहली natural theory, दूसरी utilitarian theory, ethics and reward theory, personality based theory। okay, natural rights theory, it is a theory of bulk of right that is vested only on human being। in another sense, natural law is doctrine of rights which are fundamental elements to survive as a human being on this universe। Specifically great contribution of natural law is a human rights which exist in these days in very powerful ways। so what tell us natural theory? Natural theory tell us that every human being have a right to live as a human being। हर एक प्राणी को जीने का अधिकार होता है, जैसे कि नेचुरली बाय बर्थ हमें यह राइट्स मिलता है, इसे कोई छीन नहीं सकता, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रावधान दिया है, द राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार। ओके, जगण्याचा अधिकार त्याला म्हणतो आपण। सो इट इज अ theory of bulk right that is vested only on human being। in another sense, natural law is a doctrine right which is fundamental elements to survive as a human being in this universe।
specifically great contribution natural law is human rights, which is exist these days and very powerful page. So this law is get by the nature, by the birth, by the constitution to the human being. So that's why human, each and every human being will get the power to live without any force of others person, without any अंडर प्रेशर ऑफ अदर पर्सन, किसी दूसरे के बाय फोर्स या बाय पावर्स या बाय मर्जी से आप जी नहीं सकते, आपको जीने का अधिकार है और बाय बर्थ लीगली और नेचुरली आपको यह अधिकार प्राप्त हुआ है. नेचुरल राइट्स थ्योरी कंसिडर दैट एवरीवन हैज अ नेचुरल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन हिज आइडिया. तो नेचुरली ये सबको अधिकार मिला है, तो वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर एंड दैट्स व्हाई व्हाट एवर थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम द नेचर्स एज अ प्रॉपर्टी वी हैव आल्सो राइट टू प्रोटेक्ट इट. तो नेचुरल लॉ, जीने का अधिकार और प्रॉपर्टी, इसका क्या संबंध है? आईपीआर के मन में ये सवाल आ सकता है, लेकिन इसका संबंध है जैसे निसर्ग ने नेचर ने हमें जीने का अधिकार प्रदान किया है और जिंदगी आज गिफ्ट करके हमें प्रदान की है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग निसर्ग के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें कुछ चीज़ प्राप्त हुई है एज अ प्रॉपर्टी करके, तो उसका संरक्षण करना भी हमारा अधिकार है. और इस अधिकार का उल्लंघन कोई करता है तो इट इज़ कॉल्ड द अनफेयर प्रैक्टिस, इट इज़ कॉल्ड द इलीगल प्रैक्टिस. तो इसको हम इलीगल प्रैक्टिस कहते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस कहते हैं, और ये कोई भी कर नहीं सकता. सो अ पर्सन हैज राइट टू ओन क्रिएशन ऑफ हिज माइंड एंड द सेम मैनर्स ही ओन एंड क्रिएशन ऑफ हिज लेबर्स. When a person is deprived and what he has created, there is a violation of intellectual property. So each and everyone will get the property of different type of property to human being by the natures, and in which as example we can take as a mind. So mind is a kind of the gift which is given by the God, which is given by the nature to the human being, and that's why on the base of his mind he can create anything whatever he want, and after creation something he have also right to protect it. तो माइंड हर एक को मिला है नेचर के द्वारा, तो माइंड के द्वारा ह्यूमन बीइंग कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है, एक्टिविटीज़ कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है. तो उसका क्रिएशन होने के बाद, क्रिएटिविटी होने के बाद उसका प्रोटेक्शन होना भी ज़रूरी होता है. यदि उसका प्रोटेक्शन नहीं होता है तो इट इज़ कॉल्ड अनफेयर प्रैक्टिस. तो ये अनफेयर प्रैक्टिस होती है, तो उसका प्रोटेक्शन ह्यूमन बीइंग कर सकता है, राइट. Problem is that natural right theory doesn't go off with the temporal limitation of intellectual property rights. It is true that temporal limitation is applicable to intellectual property. Intellectual property is most of the time limited in time as to the protection accorded by law. So the problem is that natural right theory doesn't go off with the temporal limitation of intellectual property rights. तो नेचुरल जो थ्योरी होती है वो टेम्पररी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है उसको कॉप नहीं करती है, तो उसके अगेंस्ट से तो परमानेंट जो प्रोटेक्शन है, परमानेंट जो सिक्योरिटी है, वह ह्यूमन बीइंग को प्राप्त होनी चाहिए बाय द नेचर, बाय द बर्थ, एंड दैट इज़ वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्ले इम्पोर्टेंट रोल रिगार्डिंग दिस. The properties in any article or reason of his own mechanical labor is never denied him. The labor of his mind is no less
worth of protection of the law. तो जो लेबर होता है in his mind is no less worth of the protection of the law. A person has a natural right to the fruits of his labors. तो according to the nature, human being has gifted the mind, and by doing the labor, by doing the effort, human being can create something new, and after creation something new, whatever it may be, whether it is artistic work, literary work, design work, pattern, copyright वगैरह, okay, so it is need to protect it. तो उसका संरक्षण होना यहाँ पर जरूरी होता है. And if someone force to distract you this kind of the creation, then under the IPR Act you can protect it, you can claim it. तो कोई आपसे यह चीज़, ये प्रोडक्शन छीनना चाहता है या चुराना चाहता है या गलत इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो और आपको इसका जज मिलता है. So John Locke was an English philosopher and physician widely regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers and commonly known as the father of liberalism. जॉन लॉकी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है. उन्होंने ये थ्योरी को प्रस्तुत किया है. John Locke has two theses. Everyone has a property right in the labors of his own body. Labor of his body and the work of his hands are properly his. तो हर एक आदमी को गिफ्ट मिला है और उसके द्वारा वह अपना काम करके, क्रिएटिविटी करके कुछ क्रिएशन कर सकता है, कुछ क्रिएटिव कर सकता है. तो उस पर प्रथम जो अधिकार होता है, राइट्स होता है, तो उस व्यक्ति का ही होता है, किसी का नहीं होता. जो उसे क्रिएट करता है उसका ही अधिकार उस पर होता है. जैसे कि इंसान को जब बच्चे पैदा होते हैं, इंसान की बात हम यहाँ पर नहीं करते, तो जो भी एनिमल होते हैं, आफ्टर दे गिव द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड, तो उस पर उसका अधिकार होता है बाय द नेचर, बाय लीगली और बाय नेचर. तो हम दूसरे के बच्चे को हमारा बच्चा नहीं कह सकते, और दूसरे ने इसी तरह से कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया होगा, कोई क्रिएशन किया होगा, क्रिएटिविटी की होगी, वेदर इट इज़ आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, ओके, इंडस्ट्रियल वर्क, तो उस पर भी उसका ही प्रथम अधिकार होता है. हम उसे हमारी चीज़ ऐसा नहीं कह सकते, या हम छीन नहीं सकते, या हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते. The appropriation of an own object arise out of application of the human labor to the object. तो जो भी appropriation object होती है वह out of application of human labors to that object. So mixing one's own labors with an own thing confers upon property right in the whole things. However, after appropriation there must remain object of similar quality, insufficient quality for others, enough and as good left for others. तो मिक्सिंग लेबर यानी कि जो लोग सेपरेटली इंडिविजुअली कुछ करते हैं तो वह चीज़ उसकी मानी जाती है, लेकिन दो और दो से ज़्यादा लोग जब मिक्स होकर एक होकर कोई चीज़ निर्माण करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उस पर किसका अधिकार होता है, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम हम कर सकते हैं क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अप्लाई कर सकते हैं क्या, इस सवाल आपके मन में आ सकता है. So all things confer upon property right in the whole things.
However, after appropriation, there must be remain object a similar quality in sufficient quantity for others. Enough and goods left for others. तो जो भी मिक्स लेबर से यानी कि संयुक्त रूप से जो भी चीज़ प्रोडक्ट तैयार होता है वह एक प्रोडक्ट बन के आता है और उनका ही नाम वहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि एक मूवी को दो लोग आके क्रिएट कर सकते हैं, एक सॉन्ग को दो लोग आकर क्रिएट कर सकते हैं, तो उनका नाम वहाँ पर दिया जाता है। और ठीक उसी तरह से जब हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उनका नाम वहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि जब हम कोई बुक लिखते हैं तो उस पर एक सिंगल ऑथर होता है और डबल ऑथर भी दिया जाता है, को ऑथर भी हम देते हैं। यानी कि एक सिंगल ऑथर और उसको किसी ने मदद की है तो उसको हम को ऑथर बोलते हैं। तो ऐसा बुक क्रिएशन में चलता है। जब हम बुक पब्लिकेशन करते हैं तो यह प्रकार का एक्सपीरियंस हमें आता है। और दूसरी बात, जब रिसर्च आर्टिकल आप लिखते हो, रिसर्च पेपर आप लिखते हो, कोई रिसर्च करते हो, तो आप अकेले कर सकते हो और अपनी टीम के साथ भी आप रिसर्च कर सकते हो, या को ऑथर के साथ भी यह रिसर्च आर्टिकल आप लिख सकते हो। तो को ऑथर के साथ आप लिखते हो तो दोनों का नाम वहाँ पर दिया जाता है। टीम के साथ आप रिसर्च करते हो तो पूरी टीम का नाम वहाँ पर दिया जाता है। तो इसका मतलब जब मिक्सिंग लेबर करते हो, मिक्स विथ यानी कि टीम वर्क करते हो, तो टीम का नाम वहाँ पर दिया जाता है और टीम का ही अधिकार वहाँ पर होता है, राइट्स होता है। किसी सिंगल व्यक्ति का राइट्स उस पर नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से इंडिविजुअल और टीम के साथ हम कॉपीराइट को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। और ये जो थेरी, नेचुरल थेरी है जॉन लॉकी ने प्रेजेंट की है हमारे सामने, वह नेचर से जोड़ती है। जैसे कि बाय नेचर, बाय बर्थ हमें कुछ स्पेशल गिफ्ट और अधिकार नेचर से प्राप्त हुए हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी हमें नेचर से मिली है उसका प्रोटेक्शन करना ये हमारा कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य, देश का कर्तव्य है। ये मोरालिटी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोरालिटी, ये नैतिकता का पार्ट है। लेकिन लीगली भी इसमें प्रोविज़न दी जाती है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन करने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। तो सभी लोग मोरली थिंकिंग करेंगे ऐसा नहीं। जैसे हम दूसरों की भावना का रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब दूसरा हमारे भावनाओं का रिस्पेक्ट करेगा ऐसा नहीं है। यदि दूसरों ने हमारे भावना का रिस्पेक्ट नहीं किया और हमारे साथ अनफेयर प्रैक्टिस की तो उसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्ट का प्रोविधान होता है, प्रोविजन होती है। सो हियर वी विल स्टॉप, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अगेन। थैंक यू। So after understanding the natural theory, we are going to discuss now utilitarian theory. So what tell us utilitarian theory? Utilitarian is an institution socially beneficial. So utilitarian, it is a kind of institute act. Utilitarianism is utilitarian theory of ethics which states that person act is morally right, and if and only if it produce the best possible result in that specific situation. Act utilitarianism is based on the principle of utility. So this theory tell us more about the utility, how we can use the product, how we can use something, that is called the utility, which is the basis of utilitarian theories and the best sum up in Bentham's well-known phrase, the greatest happiness for the greatest numbers. Okay,
So this kind of the theory is formulated by the Bentham, and he expressed one sentence, one phrase there, the greatest happiness for the greatest numbers. Okay, so I will give the one example for understanding this phrase. When we prepare the product, at that time both things are most important there, quality and quantity. Okay, if quality is provided there, but if you don't provide the quantity, then the product will be fail there. And if you will provide the quantity, a lot of quantity, and if you don't provide the quality, then product will also fail there. So both things are equal there. And one side, if we are think like that, if you purchase the good quality product, but if you don't get a quantity there, then what will happen? You become nervous. And if you will get both quality as well as quantity simultaneously, then you will satisfy with that products, and that is why this phrase indicate that the greatest happiness for the greatest numbers. तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि जो जिसमें क्वालिटी तो होती है लेकिन क्वांटिटी भी अच्छी तरह से होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट आप बार बार परचेज करते हैं. तो ये जो फ्रेज यहाँ पर दी है बेंथम के द्वारा, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, so this indicate that happiness satisfaction regarding these. So it states that we have intellectual property system because it has the effect on the betterment of the society. It is correctness is to be assessed in the economic success of the country. So why the provision of intellectual property system is provided or it is implemented in the society, or government is prepared the law on this system, because betterment of society and the good effectiveness and correctness, that is why this provision is made by the society as well as by the country. This theory is advocated by the economists such as the Bentham and Mill, and assume that the objective of any policy should be the attainment of greatest good for the greatest number. तो ये जो थ्योरी है बेंथम और मिल के द्वारा फॉर्मुलेट की गई है, और इसमें वन पॉलिसी इज गिवन दैट ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर्स. ओके, भरपूर सारी चीज़ें हम यहाँ पर तैयार करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर के साथ तैयार करते हैं. तो हर एक कंट्री की अलग अलग जो बिजनेस पॉलिसी होती है. कुछ देशों में भांडवलशाही होती है, कुछ देशों में लोकशाही होती है, कुछ देशों में समाजवादी की व्यवस्था होती है, और कुछ देशों में मिक्स होती है, भांडवलशाही समाजवादी, ऐसा दोनों मिक्स होता है. तो यदि हम कुछ ऐसे कंट्री देखते हैं कि जिसमें कैपिटलिज्म इम्पोर्टेंट होती है, उसमें भांडवल को कैपिटल को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, और कुछ देशों में सोशलिज्म होता है जिसमें लोगों को महत्व दिया जाता है. तो कैपिटलिज्म में ओनली कैपिटलिस्ट मेजर होते हैं, उनकी मोनोपोली वहाँ पर होती है, और सोशलिज्म में जो है सोशल इम्पोर्टेंट होता है, पब्लिक इम्पोर्टेंट होती है. तो समाजवाद जहाँ पर होता है वहाँ पर लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट किए जाते हैं. जितने प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे उतने लोगों को उसका फ़ायदा होता है. जैसे कि चीन और रसिया है, ये दोनों समाजवाद को प्रोत्साहन देते हैं. तो वहीं पे पहले लोग क्या करते हैं, कंपनी गवर्नमेंट क्या करती है, तो प्रोडक्ट का निर्माण करती है और इक्वल के हिसाब से समानता से सभी लोगों को प्रोडक्ट बेचती है या सभी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है. लेकिन भांडवलशाही में क्या होता है, वो जितना प्रोडक्ट क्रिएट करते जाते हैं और उसके हिसाब से बेचते हैं और उसके हिसाब से अपना उसका प्राइस रखते हैं. तो उसमें उनका बेनिफिट कमाना, ज़्यादा मुनाफा कमाना, ये पर्पज़ होता है भांडवलशाही में. कैपिटलिस्ट इसमें
बड़े हो जाते हैं, यानी श्रीमंत होते हैं, यानी अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो जनता, आम जनता होती है वो बहुत गरीब हो जाती है। तो द वैली बिटवीन द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल इंक्रीज इन कैपिटलिज्म। तो भांडवलशाही में क्या होता है, फिर जो अमीर और गरीब में जो दरी होती है, वैल्यू होती है, वो बढ़ती जाती है। लेकिन इन सोशलिज्म इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिज्म, समानता पर ही आधारित होता है। सभी प्रकार के जो लोग हैं इक्वल यहाँ पर होते हैं और सभी को सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, ऐसा उनका पर्पज़ होता है। लेकिन कुछ देशों में दो प्रकार की सिचुएशन होती है, जैसे हमारी इंडिया कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी यहाँ पर माना जाता है। तो इस प्रकार की प्रावधान इस थ्योरी में दी जाती है। However, utilitarians arguments can be cut for or against the claims of intellectual property rights. The utility gains from increase and incentive from innovation must be weighed against the losses and incurred from monopolizations. तो इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन के जितने लोगों को यह मिलता है तो उसमें यूटिलाइजेशन ये पर्पज़ होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम करता है कैपिटलिज्म। इसको हम भांडवलशाही बोलते हैं। सोशलिज्म उसको समाजवाद बोलते हैं। ओके, तो भांडवलशाही में दो प्रकार के लोग होते हैं। इसमें रिच पीपल और पुअर पीपल की जो वैल्यू होती है, दोनों का जो अंतर है बढ़ते जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, रिच और पुअर पीपल में इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी पे काम करता है सोशलिज्म। और कुछ ऐसे होते हैं तो इसमें मिक्स होता है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ओके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। तो कैपिटलिज्म ऐसे देश है, कंट्री है कि जिनमें रिच पीपल रिच होते जाते हैं, पुअर पीपल पुअर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनका एक ही पर्पज़ रहता है, बेनिफिट कमाना, एडवांटेज मुनाफा कमाना, और उसके लिए वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं और मोनोपोली के द्वारा लोगों को प्रोडक्ट क्रिएट करके ज़्यादा प्राइस से बिकते हैं या सेल करते हैं और फिर उससे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और समाज में, देश में अपनी मोनोपोली हमेशा रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कैपिटलिज्म में आते हैं और कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं। लेकिन सोशलिज्म, इसमें क्या होता है, जो जनता है वो इक्वल मानी जाती है और सभी को सबका लाभ मिलना चाहिए। सभी सुविधा जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं, सभी को इक्वल लेवल से मिलने चाहिए। और फिर उसको सोशलिज्म कहा जाता है। इक्वलिटी के बेस पर यह सिस्टम काम करती है, जैसे कि रसिया और चाइना में सोशलिज्म इम्प्लीमेंट है और फिर वही जो जनता काम करती है उनका विकास समान लेवल से समानता के साथ होता है। ओके, लेकिन मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों में कुछ ड्रॉबैक है और ये ड्रॉबैक अवॉइड करने का प्रयास हमारे देश के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए इंडिया ने, भारत ने मिक्स ऑफ
कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया है। तो हमारे देश में प्रगति होने के लिए कैपिटलिज्म भी इम्पोर्टेंट है और सभी को सभी प्रकार का न्याय मिलने के लिए और सभी को सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होने के लिए और समान विकास, सबका साथ सबका विकास होने के लिए ए मेथड एक्सेप्ट की गई है। तो ए फर्क कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमारे देश में लागू किया गया है जिसे हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से सोशलिज्म में यूटिलाइजेशन को महत्व होता है। जो प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है वह जो अंत में व्यक्ति होता है उसको उसका लाभ